Hello everyone, welcome to RiseX YouTube channel. My name is Milan. Today I'm going to discuss today's one of the most important article from today's Hindu newspaper कि सेंटर amends drug rules to ensure uniform regulation. ठीक है, it means central government has amended the drugs rules 1945. It comes under actually our governance. From governance point of view, it is very important. So what is the importance to know at least some details and some basics about कि ड्रग्स रूल्स 1945 के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा हम लोगों को, इसके बारे में क्या कहते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू नो सम बेसिक्स अबाउट कि ड्रग रूल्स 1940 एक्ट। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स 1945 वर्सेस एक्ट ऑफ 1940। ठीक है, एटलीस्ट यू हैव टू नो सम बेसिक्स about these two governing these 2 points. ठीक है, तो let's go through the PYQ. If we go to the previous year question number 75, question number 75 को देखिए. This particular question was asked in 2023 prelims कि what consider the following statement. किस तरह से यूपीएससी ने पूछा है कि India's public sector health care system largely focuses on the curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. It means UPSC examiner try to फोकस देयर जो कॉन्सेंट्रेटिंग पावर है वो फोकस करना चाहते हैं कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर है, एंड दैट इज थ्रू द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, what is the statement 2? Under India's decentralized approach to health care delivery, the states are primarily responsible for the organizing health service. ठीक है, there are particular two statements, statement 1 and statement 2, and UPSC examiner asked already put the 4 options and they want कि which of the following which of the is correct. ठीक है, which of the following is the correct in respect of the above statement. Let's go through the context at first. Now and later at the end we will solve particular this question, how to solve this kind of question in actual exam environment. So what is the context? The central government has amended the drug rules 1945 to strengthen the regulatory framework for the advanced and emerging medical technologies. ठीक है, the amendment brings stem cell derived products, gene therapeutics products, genocrafts under the purview of the central licensing approval authority. It also expands the scope of the CLA to regulate other emerging biological product. हाईलाइट्स क्या क्या है ना, यूनिफॉर्म रेगुलेशन है, एस्टैब्लिशेस ए सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल मैकेनिज्म फॉर द एडवांस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया, एक्सपेंडेड सीएलए जुरिस्डिक्शन, उसको भी जो सीएलए जो जुरिस्डिक्शन है उसको भी एक्सपेंड किया गया, जैसे कि उसमें स्टेम सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, जेन थेरेपेटिक्स प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, जेनोक्राफ्ट्स इन्वॉल्व है, वैक्सीन इन्वॉल्व है, राज बॉडी पेरेंटल्स इन्वॉल्व है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन इन्वॉल्व है, और which is the objective ने ensure quality, safety, efficiency and uniform standards for emerging therapies. So these all are the basics, aims and objective. अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रू बीइंग स्टेम सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, जीन थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, जो जेनोक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ को जो सेंट्रली लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी उसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड पावर में सेंट्रलाइज्ड वे में लाया गया है, ताकि जो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू है वो आसान हो जाए, ताकि जैसे कि सेफ्टी, एफिशिएंसी, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इटीसी। व्हाट इज द सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूवल अथॉरिटी? अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि मेंशन है तो एटलीस्ट वी नो, वी हैव टू नो सम बेसिक्स। ना कॉन्स्टिट्यूट अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंदर ये आते हैं। फंक्शंस अंडर द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, grants centralized license for the specified categories for the drugs requiring higher regulatory oversight, ensures uniform standards across all states and union territories. Now coming to the most important point कि ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ये है क्या ना, प्राइमरी एक वर्ड है, इट इज ए प्राइमरी लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो 1945 है ये एक्चुअली इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी लेजिस्लेशन है, दैट इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन, एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 ऑल्सो कम्स अंडर द दिस प्राइमरी लेजिस्लेशन की ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940।
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? एनश्योर सेफ्टी, एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स, प्रिवेंट मैन्युफैक्चर, सेल सब्सटेंस और एडल्टरेट मेडिसिन। एडमिनिस्ट्रेट बाय द कौन? एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO. So in particular this article, one most important article, one most important point you have to remember कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ये एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 ये इसके अंदर आते हैं। अगर मुझे कोई भी चेंज लाना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल का बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बट इस क्षेत्र में ऐसा जरूरी नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव, इट कैन बी एग्जीक्यूट बाय एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये यहाँ पे रूल पास हो सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये एक सैंपल क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, यहाँ पर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट वन में क्या बोल रहे हैं कि इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, ठीक है। अब ये देखिए आप थोड़ा सा बेसिक सेंस लगाए, क्या बोल रहे हैं कि लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव। इट मीन्स जब भी हम लोगों को जुकाम लगे, कुछ भी हो जाए, हम लोग क्या करते हैं कि दवाई ले लें, ठीक है। इट मीन्स क्योर करने की तरफ से हम लोग जो मेंटेलिटी है वो ज़्यादा है, रेदर देन लिमिटेड प्रिवेंटिव। क्यों? जो जो एक डिजीज को पहले प्रिवेंट कर सकते हो उसमें हमारा कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हो जाएगा उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा वी पे मोर अटेंशन आफ्टर इफेक्टिंग बाई एनी डिजीज, ठीक है। दैट मीन्स इट इज ए वी focuses on more curative care rather than any preventive. It means it is a true statement. Now, what is about the statement 2? Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. This is also a true statement. But मुझे एक बात बोलिए कि प्रिवेंटिव केयर, क्यूरेटिव के साथ इसके साथ साथ ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ कोई लिंक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इट मीन्स बोथ आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन, ठीक है। यही वाला इसका आंसर है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स। अगर हमारे इनिशिएटिव अगर आप लोगों का अच्छा लगे प्लीज दोस्त लोग से शेयर कर दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।